Around 140 million Indians lost employment during the lockdown. More than 45% households across the nation reported an income drop as compared to the previous year. इन इंडिया पीपल आर लिविंग फ्रॉम सैलरी टू सैलरी, तो जैसे सैलरी आती है वैसे सैलरी चली जाती है, बट इसके बीच में कोई सेविंग नहीं कर पाता। जब सेविंग्स नहीं होता है और ऐसे डिफिकल्ट सिचुएशन आता है जैसे कि कोविड के टाइम पे हमारे एक्सपेंसेस बहुत बढ़ गए। अगर हम राइटली अगर सेव नहीं करेंगे तो ऐसे इमरजेंसी के टाइम पे फंड्स कहाँ से लाएंगे। Unemployment rose from 6.7% on 15th March to 26% on 19th April and then back down to pre-lockdown levels by mid-June. Hi guys, welcome back to my channel. In today's video, I will give you some ideas that can help you to save your money. So I am a financial analyst and turn to be a saver. These 5 ideas can help you to save money for your emergency or for better future. ये सारे आइडियाज़ एक फुल प्रूफ आइडिया है जो मैंने रियल स्टेप्स है जो मैंने फॉलो किया है और इससे मुझे बहुत सारा फ़ायदा भी हुआ है। आई एम एबल टू मेक अ 2-story हाउस इन कोलकाता एज वेल एज मैंने थोड़े बहुत इन्वेस्टमेंट भी किए हैं। This is not to tell you that what I've achieved or I want to brag or something, but this is just to make you understand that if I can do it, why can't you? Step number 1, it's okay to look broke. Decide your priorities. So it is important कि आप पहले decide कर ले कि आपके लिए क्या important है at that current situation. Secondly, I understand broke दिखना किसी को पसंद नहीं है, but आप ये समझिए कि broke होना बहुत temporary situation है। आज आपके पास पैसे नहीं है, it doesn't mean कि पैसे आपके पास कभी होंगे ही नहीं। So you need to spend wisely. और भी चीज़ें हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, जैसे कि इट्स ओके टू नॉट गो ऑन एक्सपेंसिव वेकेशन के अब यू कैन वेट जब तक आपके पास थोड़े फंड्स आ नहीं जाते हैं, जब तक आपका फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ठीक से हो नहीं जाता है, टिल यू कैन वेट एंड देन यू कैन डेफिनेटली प्लान फॉर योर एक्सपेंसिव वेकेशन। सेकेंडली, इट्स ओके टू नॉट ईट इन अ गुड रेस्टोरेंट, बाई योर ग्रोसरीज, कुक एट होम and you can also make your meals and take it to work. Taking a loan for a marriage or a honeymoon or to buy a new car, it is not important कि आपको ये सब अभी करना ज़रूरी है, because आप already broke हो, आप लोन ले लोगे तो आप लोन का भरोगे कैसे। Do not go for clubbing with friends. If you wish to go for a clubbing, आप friends के साथ जा सकते हो, but only check that there are no cover charges. Also, you don't have to pay for your drinks. Don't pretend that you have money, because अगर आपने किसी को दिखा दिया कि आपके पास पैसे हैं तो they will ask you to spend, and when you don't have money, how will you spend? Moving to an expensive apartment is not necessary कि आपको बहुत expensive वाला ही लेना चाहिए। आपकी लिविंग को जितना easy और simple रखो, जितना expenses आप कम कर सको उतना better है। तो आप next time जब आपका ओनर आपको बोले कि आप रेंट बढ़ा दीजिए, तभी आप बताइए उनको कि let's go with the same rent. Second step, cut down your expenses. I understand expenses cut down करना बहुत difficult होता है, but it is the easiest way that it can help you to save money. So start with tracking your spending habits. आप देखिए कि आप कहाँ कितना correctly spend कर रहे हैं, उसको आप follow करिए and go with your budget plan करिए, go as per your budget. बहुत सारे बड़े बड़े एक्सपेंसेस होते हैं लाइफ में, बट आप छोटे छोटे एक्सपेंसेस में कट डाउन अगर करेंगे तो इट विल मेक अ लॉट। लाइक हाउसिंग एक्सपेंसेस कम कर दीजिए, और स्मॉल रेंटेड प्लेस जिसमें आपका रेंट भी कम हो बट यू कैन स्टे नाइसली। गो फॉर समथिंग लाइक अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स इन द सुपरमार्केट। डोंट गो फॉर ऑल ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। अनब्रांडेड प्रोडक्ट्स थोड़े कम प्राइसेस में मिलेंगे बट यू विल गेट अ गुड डील, सो गो फॉर इट। नेक्स्ट थिंग यू कैन डू इज ट्रांसपोर्टेशन। सो स्टार्ट शेयरिंग राइड्स विथ योर कलीग. Take a sharing cabs or a bike or something like that, or take a walk to your work, because transportation से भी अगर आप बचा सको that will really help you. So don't cut down on clothing or don't cut down on food or any other necessity, because ये छोटी छोटी चीज़ों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं दिखाई देगा। डिफरेंस आपको ट्रांसपोर्टेशन, हाउसिंग फैसिलिटीज़ और फूड में ही दिखाई देगा, सो गो फॉर इट। Step number 3, find something that is very cheap or ऑलमोस्ट फ्री। सो जब आप जाइए मार्केट में, आप चेक करिए कि आपको कभी भी पूरा पैसा ना भरना पड़े। सो जैसे कि आप कूपन यूज़ कर सकते हैं, डिस्काउंट कूपन्स जो मिलते हैं जैसे कि पेटीएम या गूगल पे में, या फिर आप कभी चेक करोगे तो न्यूज़पेपर के बीच में भी आपको कूपन कोड्स मिल जाता है, तो वो आप कूपन कोड्स यूज़ करिए, बिकॉज उससे आपको बहुत सारा सेविंग हो सकता है। दूसरी चीज़ जो आप कर सकते हो वो कि आप जब शॉप में जाइए तो शॉप पर
आपको बोलिए कि आपको डील्स दे या फिर डिस्काउंट दे, क्योंकि ये छोटी छोटी चीज़ें से ही बहुत सारा सेविंग्स पॉसिबल है जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। यूज प्रोडक्ट्स, जैसे कि प्रोडक्ट्स देखिए वो थोड़ा पुराना हो सकता है बट यू कैन स्टिल यूज इट अंटिल इट्स नॉट मेसी। सो गो फॉर ओल्ड फर्नीचर, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम बुक्स गो फॉर द सेकंड हैंड बुक्स, और इफ यू आर लुकिंग फॉर सम इंटरेस्टिंग क्लोथ्स ऑल्सो गो फॉर दैट। फोर्थ थिंग इज शॉपिंग एट द राइट टाइम। आप पहले से रिसर्च करिए कि कौन सा दिन आपके लिए बेटर रहेगा। जैसे कि जब सेल आता है तो आपको पहले से लाइक अ वीक और अ मंथ बिफोर यू गेट टू नो दैट विच डे इज द सेल गोइंग ऑन, सो यू गो फॉर दोस्त। इससे आपको रियली में बहुत फायदा होगा। द नेक्स्ट एंड द फोर्थ स्टेप इज माइंडफुल स्पेंडिंग। माइंडफुल स्पेंडिंग से क्या होगा कि इट विल बिकम अ पार्ट ऑफ यू। आप स्पेंड जो भी करते हैं आप उसको ट्रैक करिए। देखिए ट्रैक करने के लिए यू कैन यूज़ गूगल शीट या फिर बहुत टाइप के शीट बजटिंग शीट्स होते हैं इंटरनेट पे दैट यू कैन डाउनलोड, एज वेल एज स्टार्ट ट्रैकिंग योर स्पेंडिंग्स। दैट विल हेल्प यू फॉर वॉट? इट विल हेल्प यू टू अवॉइड दोज ब्रोक timings in your life in the end of the month you can say. So mindful spending के हिसाब से आप क्या करिए कि 50% of your net income should go for your rent, utilities, bills वगैरह के लिए आप रखिए। 30% for your travel, जो daily travel होता है, जो daily food का spendings होता है, you can track all those things for 30%, keep it for 30%, and next 20% you can use for your savings or investment. देखिए try कि आप पहले सेविंग्स कर लीजिए और फिर स्पेंडिंग करिए। इससे क्या होगा, इससे आपका लाइफ बहुत बैलेंस हो जाएगा। सो गो फॉर इट। So the last and the next step, step number 5 is learn or educate how to save. So there are various methods that you can check, जिसमें आपको एक फाइनेंस, पर्सनल फाइनेंस बोलिए या फिर आपके एक्सपेंसेस कैसे सेव कर सकते हैं या फिर आप बजट कैसे करते हैं, इस पर आप बहुत सारे बुक्स चेकआउट कर सकते हैं या फिर यू गेट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन इन द मैगजीन और यू कैन चेक इट इन यूट्यूब वीडियोज़, जिससे आपको एक क्लियर इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि कैसे आपको ट्रैक करना चाहिए एंड हाउ इट विल हेल्प यू डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टू सेव. सो ट्राई टू एजुकेट और लर्न more ways or methods that can help you to save. So educate yourself. Even if you see the Zuckerbergs, Branson, hedge fund managers of the world are wearing the same few things, eating the same few things, and trying to work in the same few places. Look at old videos of Steve Jobs, and he was always wearing the same black turtleneck. Hi guys, thank you so much for watching. Hope this video is making sense to you. If you have any ideas on how to save, you can go ahead and mention it in the comment section box. I will come back with more videos, and if you like my video, go ahead and give a thumbs up, share and subscribe to my channel. Thank you so much for watching. Bye. See you soon.